ختم نبوت کی جنگ ہمارے دادوں نے لڑی ہے، ہمارے آبا نے لڑی ہے، آج ہم لڑ رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یہ جنگ ہمارے بیٹے بھی لڑیں گے، پوتے بھی لڑیں گے، پڑ پوتے بھی لڑیں گے۔ قیامت کے دن کے آ جانے تلک ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے اور مرزائیت مرد آباد کے نعرے بھی لگتے رہیں گے۔ شہید کے جانشین مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائد محترم جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر کو کہ وہ آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں۔ جناب محترم علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدارس دینیہ کے طلباء، کتاب و سنت کے اساتذہ، دین کے مبلغین، کتاب و سنت کی ترسیل کرنے والے شاہین ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں۔ ہر شخص کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ دنیاوی اداروں سے تعلیم حاصل کرنے والے، کالجوں، یونیورسٹیوں، جامعات سے فراغت حاصل کرنے والے سرکار کے نوکر بن جاتے ہیں، اور دین کی نسبت سے دین کی تعلیم کو حاصل کرنے والے امام کائنات کے نوکر بن جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرات گرامی قدر، اس دور پرآشوب میں جب کہ پھل خالص نہیں ملتا، دودھ خالص نہیں ملتا، سونا خالص نہیں ملتا، حتیٰ کہ پانی بھی ملاوٹ والا ملتا ہے، اس دور پرآشوب میں آپ کا یہ عظیم الشان اجتماع در حقیقت ختم نبوت کی کرامت ہے، اور اس بات کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ کی نبوت سچی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور جو شخص بھی آپ کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے، چاہے وہ مسیلمہ کذاب ہو، چاہے وہ اسود انسی ہو، چاہے وہ سجاح ہو، چاہے وہ علی محمد باب ہو، چاہے وہ حسین علی مازن دانی ہو، چاہے وہ یوسف کذاب ہو، چاہے وہ احمد عیسیٰ ہو، چاہے وہ علی جا محمد ہو، چاہے وہ راشد الحلیفہ ہو، چاہے وہ غلام احمد قادیانی ہو، جو بھی حضور کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے اس پہ لعنتیں تو برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اگر آج اس عقیدے کے پاسبان ہیں تو عصبیت کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید کی درجنوں آیات ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی طرف ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جن کے بعد نبوت جاری رہنی تھی، اللہ نے انہیں محدود وقت کا نبی بنایا، محدود علاقے کا نبی بنایا، محدود زمانے کا نبی بنایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح کو بڑا بنایا، اپنی قوم کا بڑا بنایا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جناب ہود کو بڑا بنایا، قوم عاد کا بڑا بنایا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جناب صالح کو بڑا بنایا، قوم سمود کا بڑا بنایا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جناب شعیب کو بڑا بنایا، قوم مدین کا بڑا بنایا۔ جناب موسیٰ، جناب ہارون،
जनाब दाऊद, जनाब सुलेमान, जनाब जकरिया, जनाब यहया, जनाब ईसा को बड़ा बनाया, रसूलन इला बनी इसराइल बनाया। लेकिन जब उसकी बारी आई जिस पे नबूवत को अर्श के रब ने तमाम करना था, मेरे रब ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। कायनात के लोगों सुन लो, आज वो आया है जो एक अशरे का बड़ा बन के नहीं आया, रुबा सदी का बड़ा बन के नहीं आया, निसफ सदी का बड़ा बन के नहीं आया, एक सदी का बड़ा बन के नहीं आया, 5 सदियों का बड़ा बन के नहीं आया, 1000 बरस का बड़ा बन के नहीं आया, मक्कियों का बड़ा बन के नहीं आया, हिजाजियों का बड़ा बन के नहीं आया, कालों गोरों सुरों का बड़ा बन के नहीं आया, बल्कि आज वो आया है जो सारे जमानों का बड़ा बन के आया और सारे मुकानों का बड़ा बन के आया है। हजरात गिरामी कदर, और अपने तो अपने रहे, बेगानों ने भी समर का ऐलान फरमा दिया। हिंदू पंडित भी कह उठे, हजरत रसूलुल्लाह की अजमत का एतराफ करते हुए, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, आदमियत का गरज सामा मुहैया कर दिया और एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजल करम से कुरान मजीद की आयत ने हमें समझाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रसीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन हजरत रसूलुल्लाह की हयात मुबारका में मुकम्मल हो चुका है। हजूर के बाद उलमा तो आएंगे, हजूर के बाद मुजतहिदीन तो आएंगे, हजूर के बाद फुकहा तो आएंगे, हजूर के बाद उलमा तो आएंगे, लेकिन हजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। हजरात गिरामी कदर, और आज मैं ये बात भी वादे कर देना चाहता हूँ, फकत याद दहानी के लिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जरूर आएंगे, दमिश्क की जामिया मस्जिद के मीनार के ऊपर जरूर उतरेंगे, लेकिन सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को रिसालत हजूर के बाद नहीं मिली। झोली मरियम के अंदर मौजूद थे। बस्ती वालों ने कहा, या उख्त हारून मा काना अबू किमरा सौम व मा कानत उम्मु की बगिया। ए हारून की बहन, ए इमरान की बेटी, ना तेरा बाप बुरा आदमी था ना तेरी माँ ने खयानत की थी, ये तू क्या अपनी झोली में उठा के लाई है। तो सैयदा मरियम ने समर का ऐलान फरमा दिया, फाशारत इलई, अपनी उंगली का इशारा सैयदना ईसा की तरफ फरमा दिया। ऐसे आलम में बस्ती के लोगों ने कहा, कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, हम उससे कैसे कलाम करेंगे जो अभी गोद का बच्चा है। सैयदना ईसा ने झोली मरियम से समर का ऐलान फरमा दिया, इन्नी अब्दुल्लाही आतानी अल किताब वजालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रब ने मुझे किताब भी दी है, रब ने मुझे नबूवत भी दी है। सैयदना ईसा को नबूवत हजूर से पहले मिली है और गुलाम अहमद कादियानी ने दावा नबूवत हजूर के बाद किया है। और हम आज इस समर का ऐलान करना चाहते हैं, इस पंडाल के अंदर जहां पर अनवर शाह कश्मीरी के बेटे भी बैठे हुए, सनाउल्लाह अमृतसरी के बेटे भी बैठे हुए, पीर मेहर अली शाह के बेटे भी बैठे हुए, इंशाअल्लाह जब तक खत्म नबूवत का एक फर्जंद भी जिंदा है, खत्म नबूवत की चौखट के ऊपर खड़े होकर खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाता रहेगा और कादियानियत को मुर्दाबाद कहता रहेगा। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, शान रिसालत, नारे तकबीर। और हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे काबिरीन ने गुलाम अहमद कादियानी को मुबाहले के मैदान के अंदर भी शिकस्त दी है, मुनाजरे के मैदान के अंदर भी शिकस्त दी है। आज चनाब नगर के अंदर एक मरतबा फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जहाँ पर उलमाए देवबंद ने, जहाँ पर उलमाए बरेली ने मुनाजरे का चैलेंज दिया, मुबाहले का चैलेंज दिया, आज फिर चनाब नगर में मिर्जा मसरूर को मुबाहले का
चैलेंज देते हुए कह देना चाहता हूं, तालू नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजल लानतल्लाहि अल कादिबीन। और जा तू अपने बेटों को लेके आ, हम अपने बेटों को लेके आएंगे, तू अपनी जान को लेके आ, हम अपनी जानों को लेके आएंगे, तू अपनी औरतों को लेके आ, हम अपनी औरतों को लेके आएंगे। हम तुझे मुबाहले का चैलेंज देते हैं, जो झूठा होगा उस पे अल्लाह की लानत होगी। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजल करम से हर मैदान के अंदर उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और मुझसे पेशतर मेरे भाई ये बात कह रहे थे, हमारे काबिरीन ने जंग को लड़ा। हिदाबत की जुबान में ये बात मैं कह देना चाहता हूँ, खत्म नबूवत की जंग हमारे दादों ने लड़ी है, हमारे आबा ने लड़ी है, आज हम लड़ रहे हैं। एक वक्त आएगा हम दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन ये जंग हमारे बेटे भी लड़ेंगे, पोते भी लड़ेंगे, पड़पोते भी लड़ेंगे। कयामत के दिन के आ जाने तक खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगते रहेंगे और मिर्ज़ाइयत मुर्दाबाद के नारे भी लगते रहेंगे। हजरात गिरामी कदर, और ये बात भी कह देना चाहते हैं, हर किसी की अपनी अपनी मोहब्बत है। किसी को मोहब्बत है मियाँ साहब के साथ, किसी को मोहब्बत है खान साहब के साथ, किसी को मोहब्बत है जरदारी के साथ, लेकिन इन जियालों को मोहब्बत है काली कमली वाले के साथ। अल्लाह ताला के फजल करम से दौर कोई भी हो, मियाँ साहब का दौर था। ऐसे आलम में मौला अल्लाह वसाया ने कादियानी के नाम के ऊपर, अब्दुल कादियानी के नाम के ऊपर नेशनल फिजिक्स सेंटर का नाम रखने की नापाक जसारत की गई। मौलाना ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को बुलाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुनाहगार पहुंचा। मैंने कहा जब तक अल्लाह के फजल करम से सिद्दीक अकबर का एक भी नौकर जिंदा है, खालिद ने वलीद का एक भी फर्जंद जिंदा है, नेशनल फिजिक्स सेंटर का नाम जो है अब्दुल सलाम कादियानी के नाम के ऊपर रखा जा सकता। हजरात गिरामी कदर, हमने अल्लाह के फजल करम से हर दौर में खत्म नबूवत के नाराए रुस्ताहेस को बुलंद कर दिया। और इस दौरे पूरा शोब में भी, जबकि करतारपुर के कॉरिडोर को कहनों के लिए सिखों के लिए खोला गया, लेकिन उसके अंदर कादियां के लिए कादियानियों को एक पैसेज भी दे दिया गया। और इस दौरे पूरा शोब के अंदर जब मुल्क के खजाने की चाबियां आतिम मियां कादियानी के हवाले करने की नापाक जसारत की गई, और इस दौरे पूरा शोब के अंदर जबकि अक़लियती कमीशन के अंदर कादियानियों को शामिल करने की नापाक तजवीज़ें दी गई। हज़रात गिरामी कदर, जो खत्म नबूवत से मोहब्बत करने वाले थे, जिनकी निगाह अगर होती थी वह ज़ुहा के चेहरे पे होती थी, वह लैल की जुल्फों पे होती थी, मादागल बसर व मातगा वाली निगाह पे होती थी, अलम नशरा के सीने पे होती थी, वरफ़ाना लका ज़िक्रक के मुकाम पे होती थी। अल्लाह के फज़ल करम से वह शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो गए। आज भी हम खान साहब को यह बात बतला देना चाहते हैं कि दीगर मामलात के अंदर तुम्हारे साथ कंप्रोमाइज या रियायत वाला मामला किया जा सकता है, लेकिन खत्म नबूवत के मसले के ऊपर कटना गवारा है, मरना गवारा है, हाथों में कड़ी को डालना गवारा है, पैरों में बेड़ियों को डालना गवारा है, बसे दीवार जिंदा जाना गवारा है, हल्का हाय जंजीर का असीर बनना गवारा है, फांसी के फंदों पर लटक जाना गवारा है, लेकिन खत्म नबूवत के ऊपर समझौता किया जा सकता। हज़रात गिरामी कदर, काबिर उलमा इस्लाम के कंधों से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर और उनकी क़यादत के अंदर क्या तुम चौकटे खत्म नबूवत की चौकीदारी के लिए मैदान अमल में आने के लिए तैयार हो? तो फिर इस मौके के ऊपर जरा दो नारे मजबूती के साथ लगा दो, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, कादियानियत, कादियानियों का जो यार है इंशाअल्लाह शब गुरेज़ा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।